Hello students, welcome to GK Trick India, and in this presentation now we are going to discuss some more type of adjectives which we discussed in our previous two presentations. This is the third one, and in this we are going to discuss some more type of adjectives. So if you have not subscribed the channel, just subscribe the channel, like video and share it more and more so that we can share this knowledge to everybody. And if you have any doubt, you can ask me in the comment box. सो स्टूडेंट्स, ये जो प्रेजेंटेशन है ये हमारे हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में होंगे, ठीक है। तो पहले हम इसको इंग्लिश में समझेंगे, फिर इसको हम हिंदी में समझेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। सो व्हाट आर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव? इंटेरोगेटिव इटसेल्फ मीन्स, interrogation means to ask something, to interrogate. It means it will be asking you a question, so it will begin with a question, right? So keep in mind that interrogative adjectives means these are going to begin with a question, okay? So very important and very easy thing. Interrogate means to ask someone something. So interrogative adjectives will be those where we will find those adjectives which are used to begin a question. So whenever there is a question mark, it means there is a interrogative adjective, like which, what, whose, okay? So these are interrogative adjectives. Like which book is yours? So it is going to ask you that which particular book is yours. So here it will be a question mark actually. Whose pen is this? It will be a question mark actually, right? So this dot should not be there. So here it will be a question mark. Here it will be a question mark. So whose pen is this? So again, whose pen is this? It means to whom this pen belongs. So we are going to ask questions. So to begin questions, we have interrogative adjectives. So it is very clear that interrogative adjectives will be asking a question. Very clear and very simple. तो देखिए स्टूडेंट्स, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल। इंटरोगेट मतलब किसी से इंटरोगेशन करना, पूछताछ करना, कुछ पूछना, कुछ सवाल पूछना। सो इट रेफर टू दोज विच आर यूज्ड टू बिगिन अ क्वेश्चन। सो दोज एडजेक्टिव्स विच विल बी गोइंग टू बिगिन अ क्वेश्चन। सो व्हेन अ क्वेश्चन इज बिगिनिंग, इट मीन्स हियर वी आर यूजिंग अ इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, लाइक which book is yours? Whose pen is this? तो स्टूडेंट बहुत ही आसान है। which book is yours मतलब ये किताब किसकी है। तो which हो गया, whose हो गया, what हो गया। तो इंटरोगेटिव देखिए बहुत आसान होता है, ठीक है। इंटरोगेटिव का मतलब जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए, सवाल पूछा जाए, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, जहाँ भी सवाल पूछने के लिए इन चीज़ों का यूज़ किया जाए वो होते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। which, what, whose, बहुत ही आसान है। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे हम? क्वेश्चन मार्क, ठीक है, याद रखिएगा। सवाल जहां पूछ रहे हैं वहां पे आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आ जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव possessive adjective. Possessive means what? Possessive means it tells who has something, that who is possessing something, who is the owner of something, or who has experienced something, okay? And always it is always used before a noun. And it shows what? It shows relation. So possessive adjective is very simple. It will tell that who is going to own something. It tells who has something, who owns something, or who has experienced something, or who is the owner. And it will always use before a noun. So it is always used before a noun. So it will be always used before a noun, right? So it also shows what? It shows relation. Very important thing, that it will show relation. So it shows relation, like my, it will show relation, our, yours, his, their, its, right? So these are those adjectives which will tell the relation, or which will tell that who is going to own this. Now we take this example, then we'll understand it better. This is your book. So this your is going to tell who is the owner of the book. So this is your book. So it means it is the book of this particular person. That is my pen. So again it is telling that this particular pen is my pen. So who is the owner? We are coming to know that. Who is the owner? We are coming to know this thing.
So these, it should be these, T-H-E-S-E. Okay, it should be these, T-H-E-S-E. It should not be there. These are our pencils. So these are our pencils. So our pencil means this is our pencil. So these are our pencil. Again, it is telling that who is the owner of these particular pencils. Here we are knowing the owner of pen. Here we are knowing the owner of book. So it is telling the relation, that what is the relation between this particular pen and this particular person. So we are knowing the relation, and it is always used before a noun. You can see here that it is always used before a noun. So it is possessive adjective. Very clear, right? तो स्टूडेंट देखिए, पॉसेसिव एडजेक्टिव बहुत आसान है. इसमें ये पता लगता है कि कौन भाई मालिक है, मालिकाना हक किसका है, किसकी चीज है, किसने उसको एक्सपीरियंस किया है, किसके पास है, वो कौन उसको ओन करता है किसी भी चीज को. और ऑलवेज ये हमेशा यूज होता है बिफोर नाउन. ये हमेशा नाउन से पहले यूज होता है. ठीक है, पॉसेसिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले यूज होता है, और ये शो करता है दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, भाई उसका मालिक कौन है. जैसे यहाँ पे हम बुक की बात कर रहे थे, तो दिस इज योर बुक. तो ये बुक का मालिक योर, यानी कि तुम इस बुक के मालिक हो. तो इसका बुक और एक पर्सन के बीच में रिलेशन बता दिया कि भाई वो बुक उस पर्टिकुलर पर्सन की है. तो दिस इज योर बुक. योर देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो गया, पॉसेसिव एडजेक्टिव. ये बता रहा है कि उस बुक का मालिक कौन है. आई होप इट इज वेरी क्लियर. दैट इज माई पेन. वो पेन मेरा है. तो फिर से यहाँ पे माई और पेन के बीच में रिलेशन आ गया. ठीक है, यहाँ योर और बुक के बीच में आ गया था, यहाँ आवर और पेंसिल के बीच में आ गया. तो आप देख सकते हैं कि दीज आर आवर पेंसिल्स. तो ये हमारी पेंसिल्स हैं. तो ये जो पेंसिल है ये हमारी है. तो फिर से यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि कौन उसका मालिक है, कौन ओनर है, किसके पास वो चीजें हैं. तो ये रिलेशन बता दे रहा है पेंसिल और हमारे बीच में. पेन किसका है, किताब किसकी है, पेंसिल किसकी है. तो यहाँ पे हमेशा क्या पता लग जा रहा है, ओनर्स, कौन इसको ओन करता है. ठीक है, कौन उसका मालिक, कौन इसको पजेस करता है, किसके पास वो चीजें मौजूद हैं, ये पता लग रहा है हमें पॉसेसिव एडजेक्टिव में. ठीक है, तो बहुत आसान है. पॉसेसिव एडजेक्टिव मतलब ये पता लगता है भाई किसके पास कौन वो चीज पजेस करता है, कौन ये चीज, उसका मालिकाना हक किसके पास है, ये चीज पता लगती है पॉसेसिव एडजेक्टिव. राइट. नेक्स्ट वी हैव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. डिस्ट्रीब्यूटिव इज वेरी सिंपल. इट रेफर टू all. Okay, it will refer to all or some or a single thing or a person from a group. So from a group it will represent to all or to some or to a single. So it is a kind of distributive. So a thing will be distributed among these particular persons, like each, either, neither. Okay, each, either or neither. So these are the words which will tell that how things are distributed among a person. So we see here that each girl has a pen. So a pen is distributed to each girl. So each girl has a pen. We see here that each girl has a pen. So a pen, it means a pen is a thing which is possessed by each and every girl. So here see, it is representing a particular group of girl. That is, those particular group of girl has a pen. So in that group, so if this is a group of girl, so in this group each girl has the, so it is representing the all. Okay, each means all. So each is equal to what? All. Each is equal to what? All. So all the girls are having pen. Either ball is yours. So either ball is yours. So it is representing to a particular one. Now either this one or either this one. So either ball is yours. Right? Every man is emotional. So all men. Every man means all men. So these both balls are yours, or all men's are emotional. So we have to keep in mind that this is representing all or some or single of a person from a group. So from a group, this distributive adjective will tell that who has these things, like each girl has a pen, right? So this we have to understand very well. Okay, so it is very simple. Okay, when either or either, it can be pronounced as both. Either or either means we have the possibility of having any one of these two.
सो स्टूडेंट्स बहुत ही आसान है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, बहुत ही आसान है। ये किसी मतलब पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा या कुछ को रिप्रेजेंट करेगा या सिंगल को रिप्रेजेंट करेगा किसी ग्रुप में से, ठीक है। ईच, आइदर और ईदर और नीदर। ओके, सो इट इज वेरी सिंपल। तो हमें पता लग गया कि भाई अगर मान लीजिए बोल रहा है कि भाई ईच गर्ल हैज अ पेन, तो मान लीजिए एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स है, तो इस ग्रुप ऑफ गर्ल्स में सभी गर्ल्स के पास पेन है। तो ईच किसके बराबर है, सभी के लिए, ऑल के लिए, ठीक है। ईदर किसके लिए है, या तुम, दोनों में से कोई एक, किसी की भी पॉसिबिलिटी है ना। ईदर बॉल इज योर्स, या तो ये वाली बॉल या तो ये वाली बॉल, इन दोनों में से कोई भी बॉल तुम्हारी एक हो सकती है। एवरी मैन इज इमोशनल, एवरी इज अगेन इक्वल टू ऑल, ओके, एवरी इज इक्वल टू ऑल। सो एवरी मैन इज इमोशनल, इट मीन्स सारे आदमी इमोशनल होते हैं। तो एवरी मैन का मतलब हो गया कि सारे आदमी। ईदर बॉल का मतलब हो गया दोनों में से कोई भी एक होगी तो वो तुम्हारी होगी, मतलब दोनों में पॉसिबिलिटी है, कोई भी हो सकता है दोनों में से, ठीक है। और ईच गर्ल मतलब सभी गर्ल। तो यही दिखा रहा है कि ये इस तरह का एडजेक्टिव होता है, ये रिप्रेजेंट करता है चाहे सारे को, चाहे कुछ को, या किसी एक को। ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। चलिए जल्दी से फिर इसको रिवाइज कर लें स्टूडेंट, ताकि आप भूलें ना। मेरा कहने का मतलब है कि पढ़ते टाइम ही आपको सारा याद हो जाना चाहिए, बाद में आपको ये नहीं भाई अब रिवाइज करना है तब रिवाइज करना है। मेरा पढ़ाने का ये यहाँ पे एक स्टाइल है कि भाई पढ़ते वक्त ही सब कुछ याद हो जाना चाहिए हमें, जब हम वीडियो देख रहे हैं तो बार बार, ताकि हमें खोज के पढ़ना ना पड़े क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। चलिए जल्दी से रिवाइज करते हैं क्या है इसमें। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव का मतलब वो होता है जिसमें हम क्या होते हैं, वो जिसमें हम सवाल को पूछने की शुरुआत करते हैं। विच आर यूज टू बिगिन क्वेश्चन, जो किसी भी सवाल की शुरुआत करता है वहां इंट्रोगेशन, ठीक है, यानी कि सवाल की शुरुआत हुई वहां इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आ जाएगा। जैसे विच, व्हाट, हुज। विच बुक इज योर्स, तुम्हारी कौन सी किताब है। हुज पेन इज दिस, ये पेन किसका है। तो हम सवाल पूछ रहे हैं, यहाँ पे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये अगेन एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। विच पेन मतलब कौन सा वाला पेन, हुज पेन किसका पेन है ये, ठीक है। तो विच बुक इज योर्स, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। तो यहां पे सवाल पूछते हुए जो एडजेक्टिव इस तरह से होते हैं, इनको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जो सवाल को शुरू करने के लिए यूज में लाए जाते हैं। बहुत ही सिंपल, इंट्रोगेटिव मतलब सवाल पूछने वाले, ठीक। नेक्स्ट हमने देखा था पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव का मतलब क्या था, बहुत सिंपल, जिसके आप मतलब क्या हो, ओनर हो या मालिक हो, आपने उसको एक्सपीरियंस किया, और ये हमेशा नाउन के पहले यूज होता है, और ये रिलेशन को शो करता है, ठीक है। क्या शो करता है, ये रिलेशन, ओके, राइट, रिलेशन को शो करता है, ओनरशिप को शो करता है, किसकी चीज है वो शो करता है। और ये हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव जो होता है ये हमेशा नाउन के पहले यूज होता है, ऑलवेज यूज्ड बिफोर नाउन, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे दिस इज योर बुक, मतलब ये बता रहा है कि तुम्हारी किताब है, इसमें मालिक कौन है पता लग गया, तुम इसके मालिक हो। दैट इज माई पेन, मतलब मैं इसका मालिक हूँ, माई पेन, ये पेन, वो पेन मेरा है। दीज आर आवर पेंसिल्स, ये हमारी पेंसिल्स हैं, मतलब इस पेंसिल के मालिक हम हैं। तो ओनर का पता लग रहा है ना, हाँ, किसकी चीजें हैं, मतलब इट टेल्स हु है, मतलब किसके पास वो चीजें मौजूद है ये बताता है, उसका ओनर कौन है ये बताता है, ठीक है। और रिलेशन बता देता है, भाई दोनों में क्या संबंध है, कि वो उसका मालिक है, रिलेशन को बताता है। या तो आप ये भी कह सकते हो, है ना, कि भाई रिलेशन क्या है किताब में, दिस इज योर बुक, यानी कि तुम में और इस किताब में क्या रिलेशन होगा, कि ये किताब तुम्हारी है, ठीक है। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमें बहुत आसानी से पता लग गया कि पॉजिटिव एडजेक्टिव में रिलेशन या ओनरशिप का पता लगता है, ठीक, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद हमने देखा था क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में ये पता लगता है कि भाई चाहे किसी पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा हो, चाहे कुछ को रिप्रेजेंट कर रहा हो, चाहे सिंगल को रिप्रेजेंट कर रहा हो, एक ग्रुप में से, मतलब, ठीक है। जैसे मान लीजिए ग्रुप है, एक ग्रुप में क्या है, ईच गर्ल हैज अ पेन, मतलब ये मान लो ग्रुप ऑफ गर्ल अगर है तो इसमें ये बता दिया कि भाई इस ग्रुप में सारी गर्ल्स के पास पेन है, सभी लड़कियों के पास पेन है। तो ईच किसके बराबर हो गया, सभी के लिए। ईदर मतलब दोनों में से कोई एक, या तो ये वाली या तो ये वाली। ईदर और आइदर, यू कैन प्रोनाउंस इट एज बोथ, या तो ईदर बोलिए या तो आइदर बोलिए, ठीक है। अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होते हैं, ब्रिटिश अलग होता है, अमेरिकन अलग होता है, तो दोनों सही है, ठीक है, ईदर और आइदर। तो ईदर बॉल इज योर्स, या तो ये वाली या तो ये वाली, इन दोनों में से कोई एक बॉल तुम्हारी है, ये पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। एवरी मैन इज इमोशनल, एवरी मतलब फिर से किसके बराबर हो गया, ऑल के लिए हो गया, सभी के लिए हो गया। तो देखिए यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन या तो एक का होगा, या तो सभी का होगा, या तो कुछ का होगा, ठीक है, किसी ग्रुप में से। तो ये ईच, ईदर, नीदर, नाइदर, है ना,
एवरी, ये सारी चीजें रिप्रेजेंट कर रही हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने यहाँ पे जाना और भी ये डिफरेंट टाइप ऑफ एडजेक्टिव। तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी स्टूडेंट्स की मदद हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए और डाउट्स को पूछिए और मुझे बताइए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में, और भी इंग्लिश ग्रामर की सारी चीज़ें, पूरी इंग्लिश ग्रामर में आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आपको पूरा इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है तो आप मुझसे जुड़िए, इस चैनल से जुड़िए। जीके ट्रिक इंडिया पर आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर ये मिलेंगी इंग्लिश ग्रामर की, बेसिक लेवल से हाईएस्ट लेवल तक इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश लिटरेचर भी अगर इसमें होगा तो वो भी कवर किया जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लिटरेचर मतलब पूरा इंग्लिश में कवर करने वाला, इंग्लिश में कुछ भी छूटेगा नहीं आपका, ठीक है। तो इंग्लिश पढ़ना है तो आप संदीप सर से जुड़ जाइए। सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। थैंक यू।